हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा होगा और उसकी जो एक्सरसाइज पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एंड द चैप्टर नेम इज आवर नर्वस सिस्टम. Now, before starting this chapter, there are some chapter objectives. First one, the nervous system. Next one, reflex actions. Next one, sense organs. Next is care of sense organs. Okay. So let's start the chapter. We have learned in the earlier class that a cell is the smallest living part of our body. Cells working together in groups are called tissues. Each kind of tissue does a certain job. Tissues working together uh, Tissues working together form body parts called organs. Several organs working together to do one job made up a body system. Several systems work together as a team in the human body. How is this possible? So यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारे जो सेल्स है जो एक साथ काम करते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं. फिर टिश्यू जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन फॉर्म करते हैं. और ऑर्गन जब एक साथ मिल जाते हैं तो पूरा ऑर्गन सिस्टम वो क्रिएट करते हैं. ओके, एंड सेवरल ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं तो उनका जॉब होता है टू मेक अ बॉडी सिस्टम. ठीक है, एक बॉडी सिस्टम बनाने का. एंड सेवरल सिस्टम जो है वो एक साथ काम करते हैं एक टीम के फॉर्म में हमारी ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है ये पूछा गया है. हाउ आर यू एबल टू सी, हेयर, स्मेल, फील, थिंक एंड लर्न? ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. It is a very important system of the body. It makes us aware of our surroundings. It coordinates and controls other systems of the body. और सबसे important part होता है nervous system. Nervous system ही है जो control करता है कि हम मतलब क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, smell कर रहे हैं. ओके, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का. ठीक है, ये हमें अवेयर बनाता है अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट दिस नर्वस सिस्टम. The nervous system. The entire nervous system is built of neurons, nerve cells, and axons, nerve fibers. The nerve fiber is very long. Bundles of nerve fibers फॉर्म अ नर्व. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो एंटायर नर्वस सिस्टम है ये बिल्टअप ऑफ है, मतलब किससे बना गया है? न्यूरॉन से बना है, नर्व सेल से बना है, एंड एक्सॉन जिसको हम नर्व फाइबर बोलते हैं. नर्व फाइबर काफी ज्यादा लंबी होती है. ठीक है, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर जो है वो क्या फॉर्म करते हैं? नर्व फॉर्म करते हैं. Our nervous system may be divided into three parts. Three parts में हमारा nervous system divide होता है. First one is central nervous system, consists of the brain and the spinal cord. Central nervous system brain और spinal cord को consist करता है. Next one is peripheral nervous system, is made up of nerves arising from the brain and the spinal cord. अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये किससे बना होता है? ये उन नर्व से बना होता है जो कि अराइज कहाँ से करते हैं? ब्रेन से करते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड से करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ स्पेशल ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड गैंजिया, nerve center and nerves. It controls involuntary functions of several internal organs. This system is independent of our will. अब automatic. Now third one is student autonomic nervous system. Okay, autonomic nervous system जो है it consists of special group of nerve cells. ये special group of nerve cells से बना है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया बोलते हैं. Okay, यानी कि nerve center and nerves, lots of nerves. It controls, ये control करता है involuntary functions को, यानी कि वो function जो हमारे control में नहीं होता है, हमारे brain के control में होता है. Okay, here you can see the figure of nervous system. Now let's move into the next topic, that is the brain. The brain is the control center of the body. It has three main parts: cerebrum, cerebellum, and medulla. The cerebrum is the largest part of the brain. It is divided into four regions which control the working of eyes, ears, nose, and tongue. The cerebellum is the second largest part of the brain. It controls the functions of muscles coordination. The medulla is triangular in shape. It connects the brain to the spinal cord. It is involved with the regulation of heartbeat. So यहाँ पर आपको ब्रेन में दे रखा है कि ब्रेन जो है
वो कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडी का, ठीक है। और ये जो ब्रेन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेड्यूला। जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है। ये डिवाइडेड होते हैं 4 रीजन्स में, विच कंट्रोल, जो क्या कंट्रोल करते हैं, वर्किंग ऑफ आईज, वर्किंग ऑफ ईयर्स, नोज एंड टंग, इनको कंट्रोल करता है। एंड जो सेरिबेलम है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है फंक्शंस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन। एंड जो मेड्यूला है वो ट्रायंगुलर शेप का है, एंड ये कंट्रोल करता है, ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ, एंड ये इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में ये कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। नाउ हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ द ब्रेन। नाउ नेक्स्ट वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord extends from the medulla of the brain to almost the lower end of the backbone. Spinal cord medulla of the brain से start होकर lower end of the backbone तक जाता है. Nerves from the region of the head and neck join the brain directly. Nerves from all other parts of the body each side of the spinal cord which leads to the brain. Thus it links the brain with the rest of the body. It controls reflex actions. ठीक है, so ये जो nerves है इस region में from the region of the head and neck ये join करते हैं brain को directly. Okay, and ये जो nerves है from all the other parts of the body they join in each side of the spinal cord which led to the brain. Okay, Thus it ये लिंक करता है ब्रेन को विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ, एंड ये रिफ्लेक्स एक्शंस को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ब्रेन ही है जो बताता है, ठीक है, मैसेज, क्योंकि ब्रेन जो है वो ही मैसेज प्रोवाइड करता है। नाउ हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज नर्व्स। Nerves are the bundles of nerve cells spread throughout the body. Nerves from the regions of the head and the neck join the brain directly. Okay, nerves जो कि कौन से region से, from the region of the head and the neck they join the brain directly. वो brain को directly join करते हैं. Okay, nerves are of 3 types. Nerves जो है वो 3 types के होते हैं. Here you can see the first one, sensory nerves. These nerves carry messages from the sense organ to the brain. अब ये जो nerves है sensory nerve ये carry करते हैं message from the sense organ to the brain. ठीक है, next one is motor nerves. These nerves carry messages from the brain to different body parts. अब ये जो nerve है ये message carry करते हैं from the brain to different body parts. Okay, next is mixed nerves. These nerves carry messages to the brain as well as bring orders from the brain. ये message carry करते हैं brain की तरफ and as well as bring order from the brain, और brain से order भी लेकर आते हैं. Okay, so let's know about them in detail. So students, now let's know about some actions. Okay, first one is reflex actions. First one is reflex actions. Not all messages go to the brain. Certain messages need immediate or automatic action. मतलब सभी messages जो है वो brain में नहीं जाते हैं, कुछ ऐसे messages होते हैं जो जिनको automatic और immediate action की जरूरत होती है. Okay, these actions are called reflex actions and are controlled by spinal cord. इन action को हम reflex action बोलते हैं, और ये कौन control करता है? Spinal cord control करता है. Okay, the spinal cord senses the danger and takes quick actions to avoid damage to the body. Blinking of eyes, sneezing etc. are all examples of reflex actions. अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये डेंजर को सेंस कर लेता है और ये क्विक एक्शन लेता है, ठीक है, ताकि डैमेज ना हो हमारी बॉडी में, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, स्नीजिंग हो गया, ठीक है, ये सभी किसके एग्जांपल्स है? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल है. हियर यू कैन सी द रिफ्लेक्स एक्शन कि जब आप कोई गर्म ऑब्जेक्ट को छूते हो तो एकदम से हाथ आप अपना हटा देते हो, तो वो स्पाइनल कॉर्ड ही है जो मैसेज सेंड करता है. ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर there is a point, boost your mind. The human body contains approximately 100 billion nerve cells, about half of which are in the brain. 100 billion nerve cell वो कैरी करते हैं, जिसमें से आधे जो है वो कौन से एरिया में? ब्रेन में है. ओके, नेक्स्ट वन, a newborn baby brain grows almost 3 times during the course of its first year. जब वो फर्स्ट ईयर के अराउंड जाता है बेबी, ठीक है, तो उसका जो ब्रेन है वो अबाउट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वो ग्रो हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज ब्लिंकिंग ऑफ वन आई कॉजेज मूवमेंट ऑफ 200 मसल्स. जब हम सिर्फ एक ही आंख को ब्लिंक करते हैं तो उसमें 200 मसल्स का मूवमेंट वो कॉज करता है. ओके, मतलब उसी की वजह से वो मूवमेंट होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज सेंस ऑर्गन्स.
The organs which connect us to the outside world are known as sense organs. The 5 sense organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue and the skin. अब वो organ जो हमें हमारे आसपास के जो बाहरी सराउंडिंग है, वर्ल्ड है, उससे कनेक्ट करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन बोलते हैं, जिसमें हम सेंस करते हैं चीजों को. ओके, हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से? आईज है, नोज है, टंग है, ईयर्स है, स्किन है. ओके, so let's talk about them in detail. First one is the eyes. Our eyes are made up of muscles, nerves and some bones. हमारी जो आंखें हैं वो मसल से बने हैं, नर्व से और कुछ बोन से बने हैं. Okay, they are spherical in shape. They are enclosed and protected by bony sockets. ये spherical shape के हैं और ये enclosed और protected है किसके through? By bony sockets. Here you can see the image also about the human eye. The front of our eye has a transparent area called cornea. जो front area है वो एक ट्रांसपेरेंट एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं. ओके, eyelids and eyelashes also protect our eyes from dirt and dust particle. जो eyelids हो गए या eyelashes हो गए, ठीक है, जो बाल आपको दिखते हैं ना, ठीक है, तो उनको eyelashes बोलते हैं. तो वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करते हैं from dirt and dust particles. नेक्स्ट थिंग, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज द आइरिस. जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, जो कलर्ड पार्ट है आंख का उसे हम आइरिस बोलते हैं. इन दी सेंटर ऑफ द आइरिस देयर इज अ स्मॉल होल कॉल्ड प्यूपिल. और सेंटर ऑफ द आइरिस में छोटा सा होल होता है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं. ओके, द प्यूपिल इज एन ओपनिंग इन द आइरिस. इट अलाउज लाइट टू एंटर द आई. ये अलाउ करता है कि लाइट जो है एंटर हो आंखों में. डायरेक्टली बिहाइंड द प्यूपिल इज द लेंस. और इसी के एकदम पीछे क्या है? लेंस है. ठीक है, किसके पीछे? प्यूपिल के पीछे. The lens receives light that passes through the cornea. Lens light receive करता है जो pass करता है through the cornea. Okay, the lens focuses the light into the retina and the picture is formed on the screen. फिर lens जो है वो focus करता है light कहाँ पर? retina में, और फिर picture form हो जाती है screen में. ठीक है. The eye is joined to the brain with the help of optic nerve. और ये जो आंखें हैं ये brain तक connect है किसकी help से? optic nerve की help से. Optic nerves carry the message to the brain. The brain interprets the messages and we see the objects. अब ये optic nerve जो है ये message carry करते हैं कहाँ पर? brain में. and brain जो है वो interpret करता है message को और फिर वो बताता है कि अच्छा ये object है. Okay. Here you can clearly see the image of the human eye. Iris, pupil, lens आप देख सकते हो, retina आप देख सकते हो, optic nerve भी आप देख सकते हो. Okay. Now next is the ears. An ear has 3 main parts: external ear, middle ear and internal ear. ईयर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं. द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ द पिन्ना एंड द ऑडिटरी कैनाल. एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या होता है? पिन्ना होता है, ऑडिटरी कैनाल होता है. द साउंड वेव्स कलेक्टेड बाय द पिन्ना ट्रेवल थ्रू द ऑडिटरी कैनाल एंड स्ट्राइक द ईयर ड्रम. अब ये जो साउंड वेव है ये कहाँ पर कलेक्ट होता है? कौन कलेक्ट करता है? पिन्ना कलेक्ट करता है. फिर उसके बाद ये ट्रेवल करता है थ्रू द ऑडिटरी कैनाल एंड स्ट्राइक करता है किसमें? ईयर ड्रम में. ओके, द eardrum is connected to the middle ear which has 3 tiny bones. फिर ये eardrum connect होता है middle ear में जिसमें 3 tiny bones होते हैं. These bones carry the sound waves to the cochlea of the internal ear. From the cochlea, the sound waves are carried to the brain by the auditory nerves. The auditory nerves enter the brain through the medulla. The cerebrum registers the sound and we hear. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे ही जो साउंड वेव्स है वो कलेक्ट हो जाता है किसमें? पिन्ना में. फिर वो ट्रैवल करता है एक ऑडिटरी कैनाल में एंड स्ट्राइक करता है कहाँ पर? ईयर ड्रम में. ठीक है. द ईयर ड्रम फिर वो किससे कनेक्ट होता है? मिडिल ईयर से कनेक्ट होता है जिसमें 3 टाइनी बोन्स होते हैं. और ये जो बोन्स है ये कैरी करते हैं साउंड वेव्स को टू द कॉक्लिया ऑफ द इंटरनल ईयर. अंदर के ईयर में वो कैरी करते हैं. फिर फ्रॉम द कॉक्लिया द साउंड वेव्स जो है वो कैरीड होते हैं टू द ब्रेन. ब्रेन में जाते हैं. ठीक है, बाय द ऑडिटरी नर्व. कौन सी नर्व से? ऑडिटरी नर्व से. फिर ये जो ऑडिटरी नर्व है जब ये एंटर करते हैं ब्रेन में थ्रू द मेड्यूला, फिर ये बताते हैं ब्रेन को कि ऐसी ऐसी साउंड वेव्स है. ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है और बताता है कि इसकी साउंड है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द नोज. Different types of vapors are present in the air. They are carried to nose during respiration. They get dissolved in the moist lining of the nose. This impulse is conveyed to the brain.
अब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेपर्स जो कि हमारे हवा में प्रेजेंट होते हैं, ये कैरी होते हैं किसमें, नोज में, ठीक है। जब हम रिस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो उस समय ये पार्टिकल्स कैरी ऑन हो जाते हैं और फिर डिजोल्व हो जाते हैं हमारे इन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोज में, हमारे नाक की जो मॉइस्ट लाइनिंग होता है उसमें वो डिजोल्व हो जाते हैं। फिर ये इम्पल्स होते हैं, वो इम्पल्स जो है वो नर्व के थ्रू कनेक्ट होके ब्रेन में, ठीक है, उसको पहुंचाता है। फिर ब्रेन जो है बताता है मैसेज कि किसका स्मेल हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द टंग. Tongue is the sense organ of taste. We can taste various food with the help of our tongue. There are 4 kind of taste buds in different areas of tongue. They help us to taste sweet, sour, salty and bitter food items. अब ये जो हमारा tongue है, हम टंग की मदद से क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड को। अब हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं और टेस्ट बर्ड्स जो बताते हैं कि ये जो फूड है वो स्वीट है, सॉल्टी है, सॉर है या फिर बिटर है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट, बूस्ट योर माइंड. Our tongue has more than 3000 taste buds. They detect the 4 main taste. Okay, अब हमारी टंग में कितने टेस्ट बर्ड होते हैं, 3000 टेस्ट बर्ड होते हैं और उसमें से 4 मेन टेस्ट को ये डिटेक्ट करते हैं. Now the next is the skin. Skin is the largest sense organ as it covers the whole body. It has millions of tiny nerve endings which can detect many sensations like touch, pain, heat, pressure, pull, cold, etc. स्किन जो हमारा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। इसमें मिलियंस ऑफ टाइनी नर्व्स होते हैं, नर्व एंडिंग होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन तक, ठीक है। डिटेक्ट करते हैं बहुत सारे मेनी सेंसेशन जैसे कि टच हो गया, पेन हो गया, प्लेजर हो गया, ठीक है, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, एक्सेट्रा. The pores on the surface of the skin allow some body waste to come out as sweat. अब pores भी होते हैं हमारे स्किन में जो अलाउ करते हैं बॉडी वेस्ट ताकि वो बाहर की तरफ आ जाए एज अ स्वेट. The palm and the fingertips have more nerve endings, so we can feel better with them. Okay, palm और हमारे जो फिंगर टिप है उनमें ज्यादा nerve endings होती है ताकि हम ज्यादा अच्छा फील कर सके. Okay, now the next is care of सेंस ऑर्गन्स कि कैसे हमें उनका ध्यान रखना चाहिए. ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. वी शुड कीप देम नीट एंड क्लीन सो दैट they are free from germs and diseases. Wash your eyes with cold water 2-3 times a day so that they are clean and fresh. Never strain your eyes by watching too much TV or studying in dim light. Never clean your ears with a pencil, hairpin or with a matchstick. Clean your tongue also while doing brush your teeth. Okay. नाउ हियर इट इज सेड दैट कि कैसे आपको अपने सेंस ऑर्गन का ध्यान रखना चाहिए. अब आपको अपनी आंखों में ठंडे पानी से आपको झपके लेने चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जो आंखें हैं वो एकदम फ्रेश रहे, क्लीन रहे. और आपको अपने कान जो है वो ईयरबड की मदद से ही साफ करना चाहिए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं. और टंग को भी आपको टंग क्लीनर की मदद से साफ करना चाहिए जब आप ब्रश कर रहे हो. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक वर्ड बैंक दे रखा है, इसको आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही रीड करना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेन पॉइंट, सो लेट्स रीड दिस वन. First one is the nervous system coordinates and control other systems of the body. Next one, the entire nervous system is built up of nerves, nerve cells and axons, nerve fibers. Next one, the brain is the control center of the body. Next is the spinal cord extends from the medulla of the brain to almost the lower end of the backbone. Next one, nerves are the bundles of nerve cells spread throughout the body. Next one, reflex actions are controlled by spinal cord. Next is the organs which connect us to the outside world are known as sense organs. Next one, the eye is joined to the brain with the help of the optic nerves. Next is an ear has 3 main parts, external ear, middle ear and the internal ear. Next one, skin is the largest sense organs as it covers the whole body. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसकी जो एक्सरसाइज पार्ट है उसे भी अच्छे से कंप्लीट करना है. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.